Morning, everyone. Morning, everyone. Morning, Garima, Dhananjay, Divya, Gaurav. Okay, Rupa, Soumya, Sonu. Okay, Sukant, Pooja. Good morning, Ramanan. Okay, just waiting for one more minute. Let others join. Okay, how are you guys doing? कैसे हो सब लोग? Teach about latitude, longitude. गौरव लॉटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तो पढ़ाएंगे बट वो ऑप्शनल लेवल का रहेगा, वो जीएस लेवल का या फिर इजी लेवल का नहीं रहेगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई. ओके, या चलो. I'm just waiting for one more minute. Let others join, and then we can proceed with our meeting. Okay. So, how is everybody? Going good? सब ठीक चल रहा है? Okay. Are you enjoying the series with me? अब तक कैसा लग रहा है? How is the feedback up till now? Good. Okay. Cool, sir. Okay. Thank you, Ramanan. Yeah, that is how it's supposed to be. Cool. Okay. ठंडा रहना चाहिए. Okay. Okay, so audio video check. If I'm writing something on the board, is it clearly visible to you? Please tell me. Is it clearly visible to you all? If I'm writing something on the board, font ठीक है? Okay, चलो. So let's begin. So warm morning, everyone. So I welcome you all on the behalf of Study IQ IS. Okay, up till now you have known my name. My name is Pritesh Mathurkar. Okay, so I will be your friend, philosopher, and guide in this journey of geography optional. So today onwards, I'm starting with our academic endeavor. So today I will be giving you the first glance as to how the Earth is. Okay, उससे लाइफ कैसे इम्पैक्ट होती है धरती पे, एंड स्लोली आई विल गिव यू more and more things, and once I'm comfortable that yes we can begin with our sessions, so आपकी class timing फिर 1 से 4 हो जाएगी, which is continuing with the main batch. So I will be beginning with you all with climatology, so very important chapter of geography. So prior to that I will be discussing some of the little bit tidbits of climatology and little bit of geomorphology and oceanography too. तो सारा का जो मुझे नॉलेज लगेगा आप सबके लिए, वो नॉलेज मैं आपको दूंगा बिफोर बिगिनिंग विद द सेशंस. नाउ one very important announcement ab sabke liye. So that announcement is that you need to buy one atlas and you need to buy one basically book. आपको एक book लेनी है and आपको एक atlas लेना है. Okay, the name of the atlas is Orient Black Swan. The name of the atlas is Orient Black Swan School Atlas, mind you. Okay, it is School Atlas and I want the 8th edition, the latest one. Okay, I want the Orient Black Swan School Atlas, the 8th edition. Okay, no one will buy Orient Black Swan Competitive Atlas, and please गलती से भी ऑक्सफोर्ड मत लेना, ठीक है? ऑक्सफोर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, टीटीके भी उतना अच्छा नहीं है. So this atlas, Orient Black Swan School Atlas 8th edition. Now please tell me how many of you are not in Delhi. Please give me n कमेंट कीजिए कि आप में से कौन कौन दिल्ली में नहीं है. How many of you are not in Delhi? Okay, Ramanand, Rahul, Rupa, Sukanta. Okay, so majority of you are not in Delhi. Okay, okay. So now the first thing which you need to do after this session is over, okay, you have to buy this atlas. आपको इसका ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा या फिर आपके बुक स्टोर्स में कहीं पे भी होगा तो ये आपको एटलस लाना पड़ेगा. एंड गाइस, I want this atlas ASAP. So by this Saturday or maximum by Monday, I will be needing this atlas. So please everyone, please buy this atlas. Okay, 6-7 दिन की मोहलत है आपके पास में. Please ये atlas ले लीजिए. Is everybody comfortable in this? किसी को कोई डाउट है? Orient Black Swan School Atlas. Okay, morning Simrandeep. 8th edition. Okay, 8th edition. इसके सिवा और कोई एटलस मुझे लगेगा नहीं. ठीक है, हाँ.
इंडिया मैपिंग के लिए आई विल बी यूजिंग वन डिफरेंट एटलस, वो मैं आपको थोड़े देर इन द सेंस दैट वंस यू आर बिगिनिंग ऑफ द सेशन, सो 1.5-2 महीने बाद फिर मैं आपको एटलस लेने के लिए बोलूंगा। अभी आपको यही एटलस लेना है। ओके, दिस पर्टिकुलर एटलस यू हैव टू बाय राइट नाउ। ओके, एंड एक बुक बोल रहा हूँ, वो बुक हो सकता है आपके पास वो बुक होगी, ठीक है। वो बुक नहीं होगी तो प्लीज वो भी बुक ले लो। इट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोन। ओके, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय गोनचेंग लियोंग, बाय गोनचेंग लियोंग। ओके, ये बुक किस किस के पास नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज कमेंट एन दैट यू डोंट हैव दिस बुक। ओके, यू डोंट हैव पायल। ओके, जिनके पास नहीं है प्लीज ऑल्सो बाय दिस बुक ASAP। ओके, आई विल बी रीडिंग सम असाइनमेंट्स फ्रॉम यूर एंड फ्रॉम दिस बुक। ओके, जिनके पास है वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। सो दीज टू बुक्स यू नीड टू बाय एज एंड एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिवी, यू आर आस्किंग माजिद हुसैन, वो बाद में है, बहुत बाद की बुक है वो, ठीक है, अभी नहीं लगेगी मुझे। अभी स्कूल एटलस, ओरिएंट ब्लैक स्वान एंड सर्टिफिकेट फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोन। सौरभ, you need to buy these two books ASAP. Okay. No, Manan, you don't need, I will be needing school atlas. मैं वही बोल रहा हूँ Manan, if you are listening to me, I don't want the competitive edition, I want the school edition. You will have to buy the school edition. Okay. एंड इफ यू टेक माई एडवाइस, इफ यू लाइक कि सर आप जो बोलते हो हम वो फॉलो करते हैं, सो इफ यू टेक माई एडवाइस, ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर करो, एक क्लास के लिए रखो एंड एक आप अपने लिए रखो। कीप वन फॉर बेसिकली यूर क्लास वर्क, जैसे हम लोग क्लास में जो करेंगे वो, एंड एक खुद के लिए रखो जिसमें आप खुद की मार्किंग्स कर रहे हो। सो ऑर्डर 2 ऑफ देम। ओके, आपको 2 ही एटलस लेने हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, तीसरे एटलस की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, बट इसकी आप 2 ले लीजिए एंड जीसी लियोन तो जरूरी है। ओके, बेसिकली वो ऐसे बुक है कि मैं आपको 2-3 दिन में वो बुक पूरी फिनिश कर देंगे हम लोग। ओके, तो चलो, सो वाइस I welcome you all to our first academic session of geography optional per se, in the sense that this is an orientation session. So today I will be focusing on some of the bitter aspects with regards to the how the earth is oriented with regards to sun, earth की axial tilt कैसी है, earth का orbit कैसा है around the sun, and depending on that how do we have insolation received variation on earth, and how the climate of a place is influenced with regards to that. Now if I talk about geography, ठीक है, if I talk about geography, okay, I guess majority of you must be knowing this because मुझे लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस देख के आते हो लेक्चर में, so वो कर लीजिएगा। So geography जो वर्ड है, okay, it was coined in the 3rd century, it was coined in the 3rd century BCE, okay, it was coined in the 3rd century BCE by a Greek scholar, एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे पहले अर्थ की सरकमफरेंस भी प्रेडिक्ट की थी। दैट ग्रीक स्कॉलर्स नेम इज एरास्तोथेनस। Okay, Eratosthenes. Okay, so the word geography basically implies two combinations. So number first, the word geography, you have geoid and you have graphene. So you have geoid and you have graphene. Okay, so geoid basically means the shape of earth and graphene basically means description. Okay, graphene basically means the description. Okay, ठीक है, अभी कोई लिखना मत। आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू कीप A4 पेजेस रेडी विथ मी। अभी कोई कुछ मत लिखो, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना। ओके, सो ज्योग्राफी जो वर्ड है ये 3rd सेंचुरी BC में एरास्तोथेनस ने लाया था। सो ग्रीक्स वर दी, यू कैन से वर दी 4 फाउंडर्स ऑफ द कंटेंट ऑफ ज्योग्राफी। देखो, हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। वी विल स्टडी द कंटेंट, we will study the scope and we will study the methods and tools in geography. Okay, so जो कंटेंट सबसे पहले डेवलप किया गया ज्योग्राफी का, वो कंटेंट डेवलप किया ग्रीक फिलोसोफर्स ने, ओके, ग्रीक ज्योग्राफर्स ने।
सो सबसे पहली जो डेफिनेशन आई ज्योग्राफी की, द वर्ड कॉइन किया ज्योग्राफी, इट वाज बाय एरिस्टोथेनस. इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जियोइड एंड ग्राफीन, शेप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. ओके, so now guys, I'm asking you a very simple question. Okay, do you have your everyday interaction with the earth's core? क्या आपका धरती के कोर के साथ कुछ इंटरेक्शन है कि हाँ सर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरती का कोर हमारे जस्ट नीचे में है? डू यू हैव इंटरेक्शन विद द कोर ऑफ अर्थ? टेल मी. कुछ इंटरेक्शन हो रहा है आप लोगों का कोर के साथ में? सर इन द मॉर्निंग आई विजिटेड द कोर ऑफ अर्थ फॉर अ मॉर्निंग वॉक. ऐसा हो रहा है? एनीबडी हियर इन द क्लास? सर अभी जाके आए हम लोग कोर में. धनंजय, यू आर सेइंग यस. ओके, सो बताइए कहाँ गए आप? कोर में जाके आए हो? ओके, ओके. So do you have everyday interaction with the Earth's, I can say the Earth's exosphere, जहां पे एटमॉस्फेयर खत्म होता है एंड स्पेस शुरू होता है? कुछ इंटरेक्शन है आपका और एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर्स का? है क्या कुछ इंटरेक्शन? आपका इंटरेक्शन कहां तक सीमित है? आपका इंटरेक्शन सीमित है धरती के सरफेस के साथ में. ओके, सरफेस इन द सेंस वेयर यू एंड मी आर लिविंग, आर ब्रीदिंग एंड आर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेस. आप लोग रह रहे हो, आप रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एंड आप ब्रीथ कर रहे हो. तो आपका लेना देना किससे है? धरती के सरफेस के साथ में. ओके, हेंस द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी. ओके, जो ज्योग्राफी की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, ओके, ये मैं आपको पहली क्लास में बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर रह जाए कि बेसिकली ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में हमें फोकस किस पे करना है. ठीक है, सो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है ज्योग्राफी की, वो एक अमेरिकन स्कॉलर है. ओके, ही इज अ अमेरिकन स्कॉलर. ओके, ही इज अ अमेरिकन स्कॉलर. ओके, उनका नाम है रिचर्ड हार्टशोन. ओके, his name is Richard Hartshorne. Okay, in every mains you will have one question with regards to this person. बहुत important person है Richard Hartshorne. Okay, so the most acceptable definition of geography was given by an American scholar, the American School of Thought. The name of the person is Richard Hartshorne. Okay, and it was given in 1940s. Okay, 1942 में. Okay, तो हम लोग उसे 1940s बोल देते हैं. सो 1942 में इन्होंने वो डेफिनेशन दी थी. ओके, कि ज्योग्राफी इज नथिंग बट, व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ surface of earth, the study of surface of earth as the home of man, as the home of man, as the home of man. Geography basically क्या है? Geography is nothing but the study of surface of earth as the home of man. Why? Because surface is where you and me are interacting with the outside world. Okay, if I'm basically drawing the three spheres of earth, so you have the lithosphere. Okay, you have the hydrosphere, the oceans. Okay, and you have the atmosphere. Okay, you have the atmosphere. Okay, एंड इन तीनों का जो इंटरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कैन एनीबॉडी टेल मी? इसे हम लोग क्या कहेंगे? इन तीनों का इंटरेक्शन, वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट, जहां पे आपका एंड मेरा इंटरेक्शन होता है एनवायरमेंट के साथ में. कोई बता पाएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? यस रामानंद, यू आर एक्सट्रीमली राइट. दिस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. This is called as what? This is called as biosphere. हमने already देखा है ये. Okay, so biosphere is where you and me will interact with the environment, right? Okay, so इसलिए रिचर्ड हार्टशोन ने क्या कहा कि ज्योग्राफी बेसिकली क्या है? It is the study of surface of earth as the home of man. So guys, if we want to really study geography, अगर हमें सही में जानना है तो हमें बस धरती के बारे में जानना है प्रॉपर तरीके से, हाउ द अर्थ इज ओरिएंटेड एंड हाउ वी हैव द सनलाइट रिसिप्ट, कैसे इन्फ्लुएंस होता है धरती पे. सो द थ्री स्फीयर्स एंड द बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ. ओके, सो राइट नाउ आई एम नॉट बिगिनिंग विद जियोमॉर्फोलॉजी, विद क्लाइमेटोलॉजी, विद ओशनोग्राफी. अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं जस्ट आपको अर्थ की पोजिशन, अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन, उससे क्या इंपैक्ट होता है धरती पे, वो मैं चीज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ओके, नाउ आई एम ड्राइंग टू शेप्स. प्लीज टेल मी इसमें से कौन सा शेप है धरती का? ओके, सो शेप नंबर 1,
Okay. Shape number 2. Tell me, which is the shape of Earth? What is the shape of Earth? 1 or 2? या फिर इसमें से कोई नहीं? आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस. अभी यूपीएससी बेसिकली आपको खेलता है ना, सो आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2. ओके, नाइदर 1 और 2. नाइदर 1 और 2. बताइए. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. बताइए, ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? अब जो लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं गाइस, क्या धरती सही में इस शेप की है? Is Earth oval shaped? Okay. Is Earth circular? Is Earth circular? बताइए, क्या Earth circular है? Okay. Okay. क्या Earth elliptical है? नहीं. Earth is neither one neither two. बिल्कुल भी नहीं है. धरती कैसी है? How is the Earth? Please understand this very very properly. Okay. एक मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ. आप लोग को बुरा नहीं लगता है ना अगर मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ क्लास में? बिकॉज ये मेरी आदत है कि आई नॉर्मली एड्रेस माय स्टूडेंट्स बाय माय नेम. सो नो वन हैज प्रॉब्लम विद दैट, राइट? नहीं तो बोल देंगे सर हमारा नाम क्यों ले रहे हैं. बिल्कुल नहीं ना, बुरा मत मानना. मैं पहले बोल दे रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना. नहीं तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ. तो प्लीज कोई बुरा मत मानना, ठीक है? मैं अगर नाम ले रहा हूँ तो ओके, कोई दिक्कत नहीं. हम सब एक ही पेडेस्ट्रियल के हैं. आई एम जस्ट विथ यू एज अ फ्रेंड. सो प्लीज डोंट बॉदर कि अगर मैं आप लोगों का नाम ले रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू. सो द शेप ऑफ अर्थ is neither one neither two. The shape of the earth is somewhat like this. The shape of the earth is somewhat like this. Okay, so this is called as geoidal shape. Yes, some of you are getting it right. Like orange. मुस्कान आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, थैंक यू. सो इट्स जियोइडल शेप. लेकिन ऑरेंज बोल सकते हैं. ओके, it is neither circular, it is neither spherical. Okay, it is close to spherical. It is close to spherical, but ये जो sphere है, this sphere is bulging at the center. It is bulging at the center. Okay, and it is flattening at the poles. पोल्स पे जाके धरती जो है, ये पोल्स पे जाके धरती फ्लैट हो जाती है. So as soon as you go to the poles, the earth becomes flat. Please remember this. So धरती का शेप कैसा है? It is bulging at the center and poles पे जाके धरती क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है. Is everybody appreciating this? Can I move ahead? समझा सभी को कि धरती का शेप कैसा है? Okay. अर्थ इज फ्लैटनिंग एट द पोल्स एंड अर्थ इज बल्जिंग एट द इक्वेटर. इसी वजह से जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी में भी वेरिएशंस आते हैं धरती पे. कहीं कहीं पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, कहीं कहीं पे ग्रेविटी कम होगी. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. अभी रिसेंटली इंडियन ओशन में ग्रेविटी होल मिला है हमें. ओके, बहुत बढ़िया डिस्कवरी हुई है अभी रिसेंटली. जस्ट इन लास्ट वीक वी हैव डिस्कवर्ड अ ग्रेविटी होल. आई विल टीच यू व्हेन वी विल डू जियोमैग्नेटिज्म एंड व्हेन वी विल डिस्कस द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना? तो वो चीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद द शेप ऑफ अर्थ? ये बहुत बेसिक है, बट अगर आप ये समझ गए तो आपका ज्योग्राफी एकदम आसान हो जाएगा. इसलिए मैं बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, नाउ यू टेल मी, इज द अर्थ एक्सिस स्ट्रेट? क्या धरती की एक्सिस स्ट्रेट है? इज द अर्थ एक्सिस 90 डिग्री और इज इट टिल्टेड? इज द अर्थ एक्सिस स्ट्रेट और इज इट टिल्टेड? Is the Earth's axis straight or tilted? Yes, the Earth's axis is not straight. The Earth's axis is tilted. ये tilt कितना है? If I'm talking this as the 90 degree, how much is the tilt? Please tell me. ये tilt कितना है? How much is the tilt? Tilted by 82 and half. अदिति बेटा आप कहाँ जा रहे हो? 82 and half degree से tilt नहीं है अदिति. Okay, it's not tilted by 82 and half, ma'am.
ओके, इट इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री। ओके, ये टिल्ट कितना है एक्सिस के साथ में, वर्टिकल एक्सिस के साथ में, इट इज 23.5 डिग्री। अगर आप मुझे अभी एग्जैक्टली पूछेंगे सर एग्जैक्टली टिल्ट कितना है, सो अभी एग्जैक्टली टिल्ट जो है धरती का, इट इज एग्जैक्टली 24.43, 23.43 एग्जैक्ट टिल्ट है फिलहाल। एंड ये जो टिल्ट है ना धरती का, ये टिल्ट वैरी करते रहता है। सो इट वैरीज बिटवीन 22.5 डिग्री एंड इट गोज अप टू 25 डिग्री टू। सो 22 टू 25 के बीच में इसके वेरिएशंस रहते हैं धरती के एक्सिस के। एट प्रेजेंट जो धरती की एक्सिस है वो कहां पॉइंट कर रही है बताइए? वेयर इज द अर्थ एक्सिस पॉइंटिंग? आप सबको पता है, आप सबने बचपन में कविता भी सुनी होगी, वेयर इज द अर्थ एक्सिस पॉइंटिंग इन द यूनिवर्स? ये पॉइंट कहां कर रही है यूनिवर्स में? वेयर इज द अर्थ एक्सिस पॉइंटिंग इन द यूनिवर्स? यू नो द आंसर, वो यू नो द आंसर, यू नो द आंसर। किस किस तारे को ये धरती की एक्सिस पॉइंट करती है? यू नो द आंसर। ओके, हिंदी में वो वर्ड द से शुरू होता है, इंग्लिश में वर्ड एन से शुरू होता है। विच स्टार द अर्थ एक्सिस पॉइंट? मून। धनंजय सर, हाउ कैन अर्थ एक्सिस पॉइंट द मून? इट पॉइंट्स द ध्रुव तारा, इट पॉइंट्स द नॉर्थ स्टार। तो जो पुराने लोग हैं वो नॉर्थ का रेफरेंस कहां से लेते थे? ध्रुव तारे को देख के, कि अगर ध्रुव तारा दिख रहा है ऊपर में, सो दैट इज बेसिकली द अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ध्रुव तारा। सो जो अर्थ की एक्सिस है फिलहाल 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 इन द सेंस आप ऐसे समझिए कि आपके लाइफ स्पैन के लिए, ठीक है, अर्थ के एक्सिस का जो वेरिएशन आता है वो 40-50 हजार साल में एक बार में ये एक्सिस वेरी करती है। So for your lifetime, you can consider that the Earth's axis is basically tilted at an angle of 23.5 degrees and it is presently pointing the North Star, the Dhruv Tara. ठीक है? Now, please understand this very very properly. Okay, इसे please अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल होगा अभी, so please मेरा साथ दीजिएगा। Okay. So guys, this is our Earth like this. ठीक है? So हमने क्या किया कि प्रायर टू द एडवेंट ऑफ 19th सेंचुरी से पहले हमारे पास में कुछ ऐसे सिस्टम नहीं थी कि हम लोग धरती का कोई भी लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, सो अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि टोक्यो कहाँ पे है, इफ आई एम आस्किंग यू वेयर इज लॉस एंजलिस, वेयर इज सैन डिएगो, वेयर इज ब्यूनोस आयरेस, तो आप मुझे कैसे बता पाओगे? आप बता पाओगे सर लॉस एंजलिस कहीं तो अमेरिका में, बट अमेरिका में कहाँ पे? if I'm asking you where is दार एस सलाम, तो आप बोलोगे कि सर तंजानिया में है, बट मैं पूछूंगा तंजानिया में कहां पे है दार एस सलाम, वो तो बताइए। तो इसके लिए आपको लोकेशन तो पिन पॉइंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी किसी भी चीज की, किसी भी प्लेस की। सो गाइस, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन द 1880s। तो एक 1880s में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है वर्ल्ड मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ओके, सो वो जो कॉन्फ्रेंस थी 1883 1884 में वो हुई थी वो कॉन्फ्रेंस, एंड इन दैट मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, इट वाज डिसाइडेड कि हम लोग जो धरती है हमारी, धरती को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लॉन्जिट्यूड में डिवाइड करेंगे। सो लैटिट्यूड जो रहेगा वो बेसिकली धरती को दो स्पीयर्स में डिवाइड करेगा। सो विल बी डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू स्पीयर्स, विल बी डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, एंड इनके बीच की जो डिवाइडिंग लाइन रहेगी इसे हम लोग कहेंगे 0 डिग्री, एंड दिस लाइन विल बी डिनोटेड बाय 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, सो धरती को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में डिवाइड करेंगे। सो यू विल हैव 0 to 90 डिग्री लैटिट्यूड between the 0 डिग्री इक्वेटर एंड द 90 डिग्री नॉर्थ। सो 90 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहेंगे द नॉर्थ पोल, we'll call it the north pole, and similarly you will go down south। so इक्वेटर से साउथ की तरफ, ये इक्वेटर से ऊपर है नॉर्थ, ये इक्वेटर से नीचे है साउथ। सो जैसे जैसे आप इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएंगे, so you will be reaching 90 degrees south and this will be called as the south pole, this will be called as the south pole। and जो हमारी लैटिट्यूड रहेगी, so
you will have parallels of latitude ranging by 1 degree, okay, and you will have 0 to 90 degree north and you will have 0 to 90 degree south. So ऐसे हमने latitudes में डिवाइड किया, एंड हमें ये तो नॉर्थ साउथ हो गया बिकॉज हमारे पास 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो ईस्ट वेस्ट के लिए थोड़ा सा हमने और एक अच्छी चीज डाल दी कि धरती का जो रोटेशन है वो उसके एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट है ऐसा, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट है ऐसा। तो बट नेचुरली जो लोकेशन ईस्ट पे है उसे सनराइज पहले मिलेगा एंड जो लोकेशन वेस्ट पे उसे सनराइज बाद में मिलेगा। तो हमें टाइम जोन डिसाइड करने थे धरती पे कि टाइम क्या हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, नहीं। जो लोकेशन ईस्ट पे है वहां पे सनराइज पहले हो रहा है तो वहां पे घड़ी आगे चलेगी, एंड जहां पे सनसेट हो रहा है, जहां पे अभी सनराइज हुआ ही नहीं है, जहां पे अभी रात है, तो वहां पे तो घड़ी पीछे चलेगी ना। सो इसलिए हमने ईस्ट वेस्ट जो हमारे हेमिस्फीयर्स है उनको हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्जिट्यूड, एंड ईच लॉन्जिट्यूड विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मिनट्स। कोई बता सकता है मुझे हमने एक लॉन्जिट्यूड को कितने मिनट्स के साथ रिप्रेजेंट किया? अब मुझे पता है आपको आंसर पता है। ईच लॉन्जिट्यूड विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मिनट्स? ईच लॉन्जिट्यूड विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मिनट्स? ट्राई टू आंसर कीजिए। ईच लॉन्जिट्यूड विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी मिनट्स? यस, 4 मिनट्स। हमने ये क्यों किया? हमने लॉन्जिट्यूड में क्यों किया इसे? बिकॉज हमें पता है कि अगर ईस्ट में सनराइज हो रहा है, धरती का रोटेशन तो वेस्ट टू ईस्ट है ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। ये जो रोटेशन है इसके वजह से ईस्ट में सनराइज होगा एंड वेस्ट में आप जाओगे तो यहाँ तो रात रहेगी, तो यहाँ पे घड़ी हमें आगे रखनी पड़ेगी, यहाँ पे घड़ी हमें पीछे रखनी पड़ेगी। So because of this, we divided the east and western hemisphere on the basis of time zones, on the basis of parallels of longitude. So you have basically the 0 degree longitude passing through ग्रीनविच। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है ये लंदन के पास में एक गांव है, इट इज कॉल्ड एज ग्रीनविच, जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके, जहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। सो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट। सो हमने जो हमारे ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर्स है उनको हमने 0 to 180 डिग्री ईस्ट में डाला and 0 to 180 degree west में डाला, and each 1 degree longitude will corresponds to 4 minutes। तो अगर आप इंडिया का 82.5 डिग्री देखेंगे, that is called as the Indian standard time। so 82.5 डिग्री को अगर आप multiply by 4 करेंगे तो आपको exactly 5 hours and 30 minutes मिलेंगे। so please keep this in mind that जो longitude का concept आया है वो basically time से आया है, okay, because east में sunrise पहले होगा and west में सनराइज बाद में रहेगा, ओके। सो इफ आई एम शोकेसिंग यू दिस थ्रू अर्थ मैप, ओके, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ओके। सो हमने क्या किया? बेसिकली वी डिवाइडेड द अर्थ इनटू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो दिस इज अवर 0 डिग्री इक्वेटर, ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है ऐसे, ओके। सो दिस इज 0 डिग्री। इसके ऊपर आपको यू विल हैव 0 to 90 डिग्री नॉर्थ, ओके, यहाँ पे आपको 0 to 90 डिग्री साउथ, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास यू हैव ग्रीनविच नियर लंदन। सो यहाँ पे हमारे पास ग्रीनविच है, ओके, दिस इज वेयर यू हैव ग्रीनविच। सो ग्रीनविच से पास करते हुए आपकी जाएगी द 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ओके। सो 0 से 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 से 180 डिग्री वेस्ट आपका क्या रहेगा? आपका रहेगा बेसिकली द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। So you have west, you have east, okay, you have north, sorry. So you have west, you have east, you have north and you have south. तो ऐसे धरती के हमारे पास टोटल 4 हेमिस्फीयर्स है। So please keep this in mind that we have the 4 hemispheres of earth like this, okay। And ये जो है बेसिकली नॉर्थ टू साउथ हमने लैटिट्यूड में डाला है एंड ईस्ट टू वेस्ट हमने लॉन्जिट्यूड में डाला है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, जो लॉन्जिट्यूड का कंसेप्ट है वो ज्यादातर टाइम से रिलेटेड है एंड लैटिट्यूड का जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर लोकेशन से लिंक्ड है, ओके। सो अगर हमें किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट करना है धरती पे, सो हम लोकेशन कैसे देते हैं? हम लोकेशन देते हैं एज लैट लॉन्ग, वी गिव लोकेशन एज लैट लॉन्ग, ओके।
So we give location as lat long. Please keep this in mind. Okay. So किसी भी जगह का latitude क्या है, किसी भी जगह का longitude क्या है. Okay. Is everybody comfortable with this concept? Can I move ahead? Please tell me. Done? आगे बढ़े? Okay. चलो. Now, please understand this very, very properly. Okay. So, if I'm talking about the Earth, okay, now you know कि Earth का shape कैसा है, now you know कि Earth की axis कैसी है. Okay. अभी मैं बेसिकली अर्थ की एक्सेस हमारे रेफरेंस के लिए सीधी निकाल रहा हूं. ऐसे अब हमारे रेफरेंस के लिए. ओके. सो आई एम मेकिंग द अर्थ स्ट्रेट फॉर अवर रेफरेंस. मेरे रेफरेंस के लिए मैंने धरती को स्ट्रेट कर दिया है. ओके. आई एम नॉट टेकिंग द अर्थ टिल्टेड. फॉर माय रेफरेंस आई एम टेकिंग द अर्थ स्ट्रेट. ओके. सो दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. Okay, this is 90 degree north. Okay, this is 90 degrees south. Okay, so now guys, you tell me what is the primary source of energy on earth. जो धरती है उस पे हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का? प्राइमरी सोर्स, हमें धरती पे प्राइमरी ऊर्जा कहां से आती है? Where do we have the primary source of the sun? अरे मैंने आंसर दे दिया. चलिए. Okay. So the primary source of energy is sun energy. है कि नहीं? Okay. So if I'm talking about the sun, so let me draw the sun over here. This is our सूर्य देवता. Okay. sun नहीं है तो धरती पे life exist नहीं हो सकती है. So you should please worship the star that we have. Okay. So if I'm talking about the earth and the sun now, okay. So please see, this is 0 degree equator. ये सन की रेज आ रही है. ओके. ये सन की रेज आ रही है. ओके. नाउ यू टेल मी गाइस, दिस इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है. ओके. एंगल ए आपको कैसा लग रहा है? एंगल ए इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, सन की रेस कैसे होते जा रही है? सन की रेस स्लांट होते जा रही है, राइट? तो अगर आप पोल्स पे जा रहे हो तो आपकी सन की रेस कैसे मिल रही है? आपको बहुत ज्यादा स्लांट मिल रही है. ओके. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट कि जो सन की रेज है, सन की रेज इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते बहुत ज्यादा स्लांट हो जाती है. इसी वजह से व्हाट हैपेंस, जो इक्वेटर पे सन का इंसोलेशन है, इक्वेटर पे सन का इंसोलेशन डायरेक्ट है, इट इज परपेंडिकुलर. एंड एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, द एनर्जी रिसिप्ट, कितनी एनर्जी हमें पोल्स पे मिल रही है, वो एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू दैट एट द इक्वेटर. Very, very simple concept, but very, very important concept for you understanding the atmospheric circulation and dynamism of Earth. इक्वेटर पे सन की रेस कैसी है? परपेंडिकुलर है. पोल्स पे जाते जाते सन की रेस कैसे हो जाती है? स्लांट हो जाती है. सो एंड ऑल्सो यू हैव अर्थ एटमोस्फियर. धरती के आजू बाजू में हवा है. हाँ सर, हवा तो है, क्यों नहीं है? सो यू टेल मी नाउ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, लेट्स से दिस इज रे ए and this is ray E. Okay. Now you tell me, out of this two rays A and E, कौन सी रे को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर से? Which ray has to travel more distance through the atmosphere, A or E? Rahul, your comment are absolutely visible to me. Don't worry. Which ray has to travel through the atmosphere more? Please tell me. Of course, ray E has to travel through the atmosphere more. Abhi, now you tell me, अगर ray E, okay, अगर ray E जो है ये ज्यादा एटमॉस्फेयर से ट्रैवल कर रही है, ओके, सो ये ज्यादा डिफ्यूज होगी ना, ये ज्यादा स्कैटर होगी ना, बिकॉज एटमॉस्फेयर में हवा है, डस्ट है, सब कुछ है. तो रे E जो है ये ज्यादा स्कैटर होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी, ज्यादा स्कैटर होगी. सो पहले ही पोल्स पे इंसोलेशन रिसिप्ट कम एज कंपेयर टू इक्वेटर. सेकंड, जो भी इंसोलेशन हमें पोल्स पे मिल रहा है, ये इंसोलेशन हमें कैसा मिल रहा है? डिफ्यूज्ड मिल रहा है, स्कैटर्ड मिल रहा है. इसी वजह से इफ यू कंपेयर
the temperature zoning from equator towards the poles, अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो in general the temperature will what the temperature will decrease. Why the temperature will decrease? Because number one reason, okay, number one reason क्या कि the angle of rays, okay, the angle of rays, okay, it becomes more slant. And number two, the rays, they get more diffused, okay, तो डिफ्यूज्ड सनलाइट मिलता है हमें पोल्स पे, ओके. यू मस्ट हैव हर्ड उषा एंड संध्या, है ना, सनराइज के ठीक पहले एंड सनराइज के ठीक बाद में आपको उषा एंड संध्या कहते हैं ना हम लोग, कि जब हमारे पास डिफ्यूज सनलाइट होता है जिसे हम लोग ट्वाइलाइट भी कहते हैं, राइट. सो रेज जो है वो डिफ्यूज मिलती है. सो इसी वजह से इन जनरल फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स you have variation receipt, and in general the equatorial regions are hotter and in general the pole regions are colder. Is everybody appreciating this fact? किसी को कोई डाउट है इसमें? प्लीज टेल मी. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. ओके, कैन आई मूव अहेड? शुड आई मूव अहेड? प्लीज कमेंट यस नो. आगे बढ़े? ओके, चलो चलो. सो अभी आप लोगों को एक डाउट तो आ रहा होगा ना कि सर आप ये कैसे बोल रहे हो कि इक्वेटर जो है ये इक्वेटर हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा. इक्वेटर कैसे क्या हर बार परपेंडिकुलर रह सकता है सन की रेस? आ रहा है किसी के मन में डाउट? सर आप बोल रहे हो इक्वेटर पर हमेशा परपेंडिकुलर गिरी, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? किसी के मन में डाउट आ रहा है? ओके, चलो. सो इसके लिए आपको धरती का ऑर्बिट जानना पड़ेगा अराउंड द सन, कि धरती का ऑर्बिट कैसा है अराउंड द सन. सो प्लीज रिमेंबर, ओके, जो धरती का ऑर्बिट है, ओके ओके, द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन, ओके ओके, अराउंड द सन. सी, I'm giving you four options. Okay, the Earth's orbit around the Sun. Option number A, it is circular. Option number B, it is elliptical. Okay. Option number C, okay, it is highly, okay, highly eccentric यानी बहुत ज्यादा इलिप्टिकल है. ओके. और ऑप्शन नंबर डी, कैन बी ए बी सी. बताइए बताइए बताइए, इन चारों में से मुझे ऑप्शन बताइए कौन सा. यस, टेल मी गाइस, विच ऑप्शन यू आर फाइंडिंग? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन? सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. गलत हुआ तो गलत हुआ. ट्राई टू आंसर, ट्राई टू आंसर. इवन इफ इट इज रॉन्ग, नो वरीज. ओके, मैं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, है ना. शाहरुख खान का है ना, मैं हूं ना तो मैं हूं ना, कहां जा रहा हूं. ओके, सो गाइस, द करेक्ट आंसर, ये यूपीएससी में ध्यान में रखना, ठीक है. मैं आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी करा रहा हूं, बिकॉज आप मेंस तो तभी लिख पाओगे, मेरी पढ़ाई तभी काम में आएगी जब आप बेसिकली समझ पाओगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे ना. ज्योति, ज्योति, यू आर सेइंग ऑप्शन डी. आप ऑप्शन डी क्यों बोल रहे हैं बताइए? ऑप्शन डी कैसे कहा गया ज्योति बेटा? ज्योति, हाउ आर यू सेइंग ऑप्शन डी? ट्राई टू एक्सप्लेन. ऑप्शन डी कैसे आ गया बेटा? ज्योति, आर यू लिसनिंग टू मी बेटा? बताइए ऑप्शन डी कैसे बोला आपने? आपके दिमाग में कैसे ऑप्शन डी रह सकता है? आई एम नॉट कंफर्म. ओके, सो ज्योति, आपने कौन बनेगा करोड़पति में आपने 7 करोड़ का सवाल का जवाब गेस कर दिया एंड आपका वो 7 करोड़ का जवाब सही निकल गया. सो हो जाता है कभी कभी, तो लक साथ दे देता है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो हॉट सीट पे आप बैठे हो, 7 करोड़ का जवाब आपने गेस कर दिया, 7 करोड़ की आपको लॉटरी लग गई. ओके ओके, so please remember the Earth's orbit around the sun ranges from nearly perfectly circular
perfectly elliptical, highly elliptical, or it can be any of this. Okay, so this is called as the eccentricity factor of the Earth's orbit. ओके, अर्थ का ऑर्बिट जो है अराउंड द सन, ये ऑर्बिट वेरी करता है अपने शेप में. ये ओवल रह सकता है, ये हाईली इसेंट्रिक रह सकता है, या फिर ये सर्कुलर भी रह सकता है. अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन चेंजेस. अब आप बोलेंगे सर चेंज, ये चेंज कब होगा, कौन से टाइम स्केल में होगा? सो इसका जो चेंज आता है अर्थ के ऑर्बिट में, इट हैपेंस 1 to 2 times in roughly 2 to 3 million years. So 20-30 लाख साल में अर्थ का ऑर्बिट चेंज होता है. प्रेजेंटली अर्थ ऑर्बिट इज ऑन अ वर्ज ऑफ चेंज. अभी प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको धरती का ऑर्बिट थोड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है. बट अभी के लिए, फॉर नाउ, यू कैन कंसिडर द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एज इलिप्टिकल. ओके, आप इलिप्टिकल कंसिडर कर सकते हैं धरती के ऑर्बिट को अराउंड द सन इन योर लाइफ टाइम. रूपा, यू आर विजिबल टू मी, डोंट वरी. ठीक है, सब लोग दिख रहे हो मुझे. प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए बीच बीच में. मैंने बोला है कि कोई मुझे टोकेगा नहीं बीच में. एंड ऐसे कमेंट्स प्लीज मत कीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है. एंड प्लीज बुरा मत मानना इस बात का. तो आपके टाइम फैन के लिए, जब तक आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हो, तब तक आप कंसिडर कीजिए कि धरती का ऑर्बिट जो है अराउंड द सन वो कैसा है जनाब, वो इलिप्टिकल है. एंड सन जो है वो एक फोकस पे है. अगर मैं इलिप्टिकल इक्लिप्स लेता हूं, ओके, इफ आई एम टेकिंग अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, सो इसके दो फोकस होते हैं, यू हैव F1 एंड F2. तो सन जो है वो बेसिकली एक फोकस पे है प्रेजेंटली अलोंग द elliptical orbit. So sun is at one of the foci of the eclipse, of the ellipse that you have. Okay, so abhi if I'm considering the earth's revolution around the sun, and if I'm showcasing you 4 positions, so 4 positions बहुत अच्छी तरीके से देखिए. एंड इस पे हम लोग बहुत बढ़िया बेसिकली बहसबाजी करेंगे. बहसबाजी इन द सेंस कि ये कैसे रह सकता है, ये कैसे पॉसिबल है. यू आर फ्री टू डिस्कस विथ मी, यू आर फ्री टू हैव अ डिबेट विथ मी. ठीक है, तो बिंदास, बिल्कुल जो भी आपके मन में डाउट्स है बिंदास कमेंट कीजिए. एंड बेसिकली आप जो भी मन में सब क्लियर कर लीजिए आज के लेक्चर में, बिकॉज इसके बाद में मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा. ये मैं देखूंगा कि आप लोगों ने वो चीजें समझ ली है. ठीक है, सो नाउ इफ आई एम ड्रॉइंग द एग्जैक्ट ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, so it is somewhat like this. So just imagine this is our sun. Okay, so जो धरती का ऑर्बिट है अराउंड द सन वो कुछ इस तरीके का है. Okay, this is the exact orbit of earth around the sun. So please remember this very properly. Okay, so this is the exact orbit of earth around the sun at present. Okay, so if I'm considering this 4 positions, okay, position number 1, okay, position number 2, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 4. ओके, अगर मैं ये 4 पोजीशंस कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे धरती की एक्सिस है. ओके, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे धरती की एक्सिस है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे धरती की एक्सिस है टिल्टेड. ओके, ये हमारा इक्वेटर है एंड ये हमारे धरती की एक्सिस है. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड. ओके, नाउ इफ आई एम कंसीडरिंग पोजीशन ए, position B, position C and position D. Okay, अगर मैं 4 पोजीशंस कंसिडर कर रहा हूं, नाउ यू टेल मी, क्या इक्वेटर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन बदल रही है? प्लीज कमेंट यस नो. Is the position of equator with respect to the sun changing in any of these positions? I'm considering the extremities. एकदम दूर दूर वाली पोजीशन कह रहा हूं. क्या इक्वेटर की पोजीशन, क्या इक्वेटर जो सन को फेस कर रहा है वो चेंज हो रहा है क्या इन एनी ऑफ दिस पोजीशन? ये इक्वेटर 0 डिग्री, यू टेल मी, क्या इक्वेटर चेंज हो रहा है? देखो डायग्राम देखो एंड जस्ट ऑब्जर्व. इक्वेटर पे सन की रेज हमेशा 90 डिग्री पहुंच रही है. यस, पहुंच रही है. सो प्लीज रिमेंबर, ओके, जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ओके, इसकी पोजीशन जो है, ओके, द पोजीशन ऑफ इट इज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू सन. इज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू सन. इक्वेटर जो है ये पोजीशन फिक्स्ड रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू द सन.
इसलिए इक्वेटर एक ऐसी लोकेशन है धरती पे जहां पे यू विल हैव नो सीजन्स. इक्वेटर पे यू विल हैव नो सीजन्स. You will have no seasons on the equator. Why? Because on equator you will always have perfect 12 hours day and 12 hours night. आप बोलेंगे कि सर ये कैसा पॉसिबल है? Why? Because इक्वेटर की जो पोजीशन है विथ रिगार्ड्स टू दिस सन इट्स फिक्स्ड. आप कोई भी पोजीशन ले लो, इक्वेटर जो है वो ऑलवेज इक्वली एक्सपोज्ड है सन को. So एक half of the earth is facing away from the sun on the equator and one half is always facing the sun. So on equator, if I take you, you will have perfect 12 hours day and 12 hours night. चलो आप बोलते हो कि सर इसका कंफर्मेशन दीजिए हमें. So I've been giving you confirmation. So मैं इक्वेटर की सिटीज कंसिडर करता हूं. ओके, सो लेट मी शोकेस यू द सनराइज सनसेट टाइम ऑफ सिंगापुर. ओके, ओके. नाउ प्लीज टेल मी, आर यू एबल टू सी सनराइज सनसेट? देखिए, सनराइज सनसेट देख पा रहे हो आप लोग? आर यू एबल टू सी सनराइज एंड सनसेट गाइस ऑफ सिंगापुर? गाइस प्लीज कमेंट. सो कैन यू सी सनराइज एंड सनसेट? सो राइज कितने बजे हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग एट 7:05 एंड हाउ मच इज द सेट टाइम? 7:16 PM. सो कितने घंटे का दिन है? 12 घंटे 11 मिनट का दिन है. एंड कितने घंटे की रात है? 12 घंटे एंड 19 मिनट की रात है. आर यू एबल टू सी दिस? सो सिंगापुर जो है, सिंगापुर इज नियर टू इक्वेटर, लाइक 1 या 2 डिग्री इक्वेटर पे है सिंगापुर. सो दिस इज ऑफ सिंगापुर. इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? सो इफ आई टेक यू टू इक्वेटर, इक्वेटर पे आपको क्या मिल रहा है? परफेक्ट 12 घंटे की दिन एंड 12 घंटे की रात मिल रही है. इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस इन्फो? प्लीज टेल मी. शैल आई मूव अहेड? डू आई हैव योर परमिशन? बिकॉज इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. वो कंसेप्ट के लिए मुझे आपका बहुत अटेंशन लगेगा. इज एवरीबडी अप्रिशिएटिंग दिस? ओके, सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग, ओके, इफ आई एम टॉकिंग कि इक्वेटर पे जो है, इक्वेटर की पोजीशन फिक्स्ड है एंड इसमें आपको 12 घंटे के दिन एंड 12 घंटे की रात मिल रही है. सो नाउ यू हैव व्हाट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेटर, सो अगर मैं इक्वेटर के बारे में बात करूं 0 डिग्री पे, सो यू आर हैविंग व्हाट? यू आर हैविंग परपेंडिकुलर इंसोलेशन. यू आर हैविंग परपेंडिकुलर इंसोलेशन. एंड ये जो परपेंडिकुलर इंसोलेशन है, दिस इज 24/7. ओके, 365 डेज अ ईयर है ना. ये 365 डेज अ ईयर, ये कांस्टेंट है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? इक्वेटर पे क्या होगा? सो एज द सन रेज आर रीचिंग द सरफेस डायरेक्टली, इफ दिस इज द सरफेस ऑफ द इक्वेटर, द सन रेज आर परफेक्टली 90 डिग्री. सो धरती गर्म होगी एंड धरती से गर्म होके हवा, इट विल स्टार्ट टू राइज अप. ओके, so on equator, because of perpendicular insolation, you will have what? You will have intense vertical, you will have intense vertical convection, you will have intense vertical convection. Okay, so इक्वेटर पे इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन हो रहा है. हवा जो है वो गर्म होके ऊपर उठ रही है. क्यों? बिकॉज सन की रेस कैसी है? इट इज फॉलोइंग परपेंडिकुलरली ऑन द इक्वेटर. नाउ यू टेल मी, हवा अगर गर्म होके ऊपर उठ रही है, तो जैसे हवा गर्म होके ऊपर उठेगी, हवा का क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द एयर? टेल मी.
हवा अगर गर्म होके ऊपर उठ रही है तो ऊपर उठेगी हवा, तो क्या बनेंगे आपके पास में? What you will have if air is rising up? It will start condensing. ये ठंडी होना शुरू होगी and you will have formation of what? Yes, you are all right. Try to answer. गलत हुआ तो गलत हुआ, आंसर तो करने की कोशिश कीजिए. Yes, you will have formation of what? You will have formation of मैसिव क्लाउड्स. बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स मिलेंगे आपको. यू विल हैव थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स. व्हाई? बिकॉज ये जो वर्टिकल कन्वेक्शन है ये बहुत इंटेंस है. इंटेंस के वजह से जो क्लाउड्स बनेंगे इक्वेटर पे, ये क्लाउड्स बहुत बड़े बनते हैं. बहुत बड़े मीन्स दीज क्लाउड्स कैन हैव अ हाइट ऑफ 10 to 13 किलोमीटर्स. इतने बड़े क्लाउड्स बन सकते हैं आपके पास में. एंड दीज क्लाउड्स गाइज, दीज क्लाउड्स दे आर कॉल्ड एज व्हाट? These clouds they are called as क्यूमोलोनिम्बस. ये क्लाउड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दीज क्लाउड्स एज क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड्स. क्यों 10 से 13 किलोमीटर हाइट के क्लाउड्स क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंटेंस वर्टिकल कन्वेक्शन. सो क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड्स. ओके. एंड अगर क्लाउड्स है तो क्या आएगी? यू विल हैव ऑन इक्वेटर व्हाट? क्या मिलेगा? अगर क्लाउड ज्यादा है तो इक्वेटर पे क्या मिलेगा? देखो ऑप्शनल की क्लास है, थोड़ा अच्छे लेवल का आंसर दो. यानी वो मैंने बोल रहा हूँ ना, आंसर मी फ्रॉम अ रोल्स रॉयस लेवल. रेनफॉल मत बोलो. द वर्ड स्टार्ट्स विद पी. डोंट से रेनफॉल. वो वर्ड पी से शुरू होता है. यू नो द आंसर. वो वर्ड पी से शुरू होता है. यस आयुष, यू गॉट द आंसर. यू हैव. यस इरफान साहब, आप बराबर हो. एवरीवन, पूजा, रूपा, देवर्षिस, सब लोग बराबर हो. यू विल हैव व्हाट ऑन इक्वेटर? You will have heavy precipitation. You will have heavy precipitation. इक्वेटर पे क्या होगा? बहुत ज्यादा precipitation होगा. So because of this heavy precipitation, you will have what? You will have formation of equatorial. You will have formation of equatorial rainforests. You will have formation of equatorial rainforests. Okay, so if now I'm showcasing on equator पे rainforest कहाँ पे है हमारे पास में. Okay, so if I talk about the equator, so you have the world's biggest rainforest जिसे हम लोग सेल्वास ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, बिकॉज जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है हमारा, वो दुनिया का लगभग 17 से 19% ऑक्सीजन सप्लाई करता है. सो वर्ल्ड का बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट, यू हैव द ग्रेट माइटी अमेजोन रिवर. द अमेजोन रिवर ट्रांसलेट्स टू द अमेजोन रेन फॉरेस्ट. ओके, वी कॉल देम एज द सेल्वास ऑफ द वर्ल्ड. ओके, इसके बाद है आपका, यू हैव द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट. And after that you have the rainforests of Borneo. You have the rainforests of Borneo. Now guys, what you have to do? Okay, आज का लेक्चर यही समाप्त है. आपको क्या करना है? कल मुझे आपको 3 पेज की असाइनमेंट सबमिट करनी है. You have to submit me 3 page assignment. Okay, okay. You have already have my number and you have my telegram. Okay. सो मैं फिर से लिख दे रहा हूं मेरा नंबर. ओके, कोई मुझे व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करेगा. नो वन विल पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. यू शुड पिंग मी ऑन टेलीग्राम. ओके, मुझे प्लीज टेलीग्राम पे पिंग कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मत पिंग कीजिएगा. ठीक है. सो यू कैन हैव माय नंबर. इट्स 9921355533. ओके, 9921355533. एंड टेलीग्राम पे आप मुझे बस सर्च कर लीजिए @प्रीतेश माथुरकर. ओके, at Pritesh Mathurkar. Okay, so everything is in small, hence I'm writing cursive. You know my name now. Okay, at Pritesh Mathurkar. आप मुझे बस सर्च कर लीजिए, आपको मेरा चैट मिल जाएगा, चैट बॉक्स. ओके, टेलीग्राम चैनल इरफान सर नहीं, चैनल कोई नहीं है. आपके लिए स्पेशली मैं अवेलेबल हूँ. चैनल पे कोई नहीं डालेगा, मुझे डायरेक्टली भेजेंगे, बट मुझे टैग करेंगे. जैसे इरफान सर, अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप मुझे असाइनमेंट भेज रहे हैं, सो आप असाइनमेंट मुझे कैसे भेजेंगे? आप स्कैन करेंगे एंड पीडीएफ फॉर्मेट में भेजेंगे. सो इफ राजेश्वरी, अदिति, सौरभ, एनी वन ऑफ यू, अतुल, मुस्कान, कोई भी मुझे भेज रहा है, सो @मुस्कान, @अदिति, @इरफान, @राजेश्वरी ऐसे टैग करेंगे खुद को आप एंड मुझे पीडीएफ भेजेंगे. ओके,
So you have to give me 3-page write-up. 3 page means 1, 2, 3. एक पेज का write-up, 3-page write-up. So 1-page write-up, 1 page on the reasons for deforestation of Amazon. Okay, reasons for deforestation of Amazon. Deforestation of Amazon. ओके ये एक पेज पे आप डालेंगे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है. द सेकंड पेज यू विल गिव मी ओके ओके द coal beds of the Congo rainforest एंड इनका यूक्रेन वॉर के साथ क्या लिंक है. जो भी वॉर चल रहा है ना यूक्रेन का, तो इनका यूक्रेन वॉर के साथ क्या लिंक है ये आप देखेंगे. एक पेज पे आप ये लिखेंगे. ओके ओके एक पेज पे आप ये लिखेंगे. ओके एंड द थर्ड पेज यू विल गिव मी ओके 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 palm pod cultivation in Borneo. Palm pod cultivation in Borneo. The palm pod cultivation in Borneo. Okay. So deforestation of Amazon. Second page पे coal beds of Congo. Okay. And उनका यूक्रेन वॉर के साथ क्या लिंक है. एंड थर्ड पेज पे आप लिखेंगे कि पाम पॉड कल्टीवेशन का क्या लिंक है बोर्नियो में एंड उससे क्या एनवायरनमेंट का थ्रेट हो रहा है. ओके इरफान सर, मैंने एटलस के बारे में बोला था कि यू नीड टू बाय ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस 8th एडिशन एंड आपको जीसी लियोन बुक परचेज करनी है. Is everybody comfortable with this? So you will submit me a 3-page assignment on Telegram. No one will submit me on WhatsApp. WhatsApp में मैं देखता नहीं हूँ. Okay. Got it everyone? Please tell me. Yeah. Okay. चलो. कोई डाउट होंगे? Okay boss. Okay आयुष boss. Done. ठीक है. So any difficulty you are free to ask me. Otherwise you may leave the meeting. Okay. कोई difficulty है पूछ लीजिए. How equator is perpendicular to the sun. Okay. Okay. रूपक कुछ नहीं, आप स्कैन करेंगे. रूपक आप स्कैन करेंगे पीडीएफ में एंड उसके नीचे स्कैन के नीचे आप @रूपक डालेंगे एंड आप मुझे टेलीग्राम पे भेज देंगे @प्रितेश माथुरकर पे. ठीक है. ओके सो मुस्कान प्लीज सी द डायग्राम अगेन. सी देखो डायग्राम देखो. ओके ये सन की रेज देखो इक्वेटर पे. ओके ये सन की रेज देखो इक्वेटर पे. ओके सी द सन्स रेज ऑन इक्वेटर. हमेशा अगर आप इक्वेटर बोलेंगे तो इक्वेटर पे सन की रेस कैसे पहुंचेगी. डायरेक्टली परपेंडिकुलर पहुंचेगी. क्यों? बिकॉज इक्वेटर की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द सन इट इज नॉट चेंजिंग. इक्वेटर की पोजीशन फिक्स्ड है. देखो मुस्कान एंड सुकांता. ओके कैन यू सी माय हैंड? कैन यू सी माय हैंड? प्लीज टेल मी. कैन यू सी माय हैंड? प्लीज कमेंट. ओके सो देखो ये मेरी धरती है एंड ये इक्वेटर है. ये धरती अराउंड द सन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस. तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन लाइक दिस. अभी मैं धरती को टिल्ट कर रहा हूं. आई एम टिल्टिंग द अर्थ लाइक दिस. सो इवन इफ आई टॉक विथ रिगार्ड्स टू दिस, ये हाथ मेरा टिल्टेड है तो ये सेंटर में और इक्वेटर है. देखो यहाँ पे भी इक्वेटर देखेंगे तो सन की रेस कैसे पहुंच रही है? परपेंडिकुलर. अगर मैं यहाँ पे भी ला रहा हूं तो सन की रेस कैसे पहुंच रही है? परपेंडिकुलर. अगर मैं यहाँ पे भी ला रहा हूँ सन की रेस कैसे पहुंच रही है? परपेंडिकुलर. एंड अगर मैं यहाँ पे भी ला रहा हूँ तो सन की रेस कैसे पहुंच रही है? परपेंडिकुलर. अभी समझा? कंफर्टेबल नाउ? ओके डन एवरीवन. सो दिस 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 एंड दिस अब समझ में आ गया. चलो ठीक है. यही तो खासियत है ना ज्योग्राफी की. इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. ठीक है. विजुअलाइजेशन में मैं काफी एक्सपर्ट है ना. एक्सपर्ट इन द सेंस आई गिव यू वेरी गुड विजुअलाइजेशन. तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. हु इज आस्किंग ट्रॉपिक्स? आयुष सिंह सर थोड़ा रुकिए ना, सब्र कीजिए. मैं कहाँ जा रहा हूँ. ट्रॉपिक्स कल डिस्कस करेंगे ना. ठीक है. आज तो इक्वेटर ही आया समझ में. आप समझा आज इक्वेटर पे रेन फॉरेस्ट क्यों है. कल ट्रॉपिक्स देखेंगे. ठीक है. चलिए और कुछ डाउट है किसी को?
और किसी को डाउट है? चले, so shall I end the meeting? Okay, so guys, please take good care of yourself. See you tomorrow sharp at 11 p.m. Okay, 11 a.m. ठीक, चलो, till then, bye bye. Thank you all.